الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا بابرکت اور باسعادت مہینہ عطا فرمایا، اور عن قریب آج 9واں روزہ ہم سب کے درمیان میں رخصت ہونے والا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ چل رہا ہے۔ روزوں کی فضیلت، روزوں کی اہمیت اور رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں جن چیزوں کا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے، اس پر گزشتہ 2 ہفتوں سے تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اب اس ہفتے جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے اور کس طریقے سے ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے فوائد کیا کیا ہیں۔ تو زکوٰۃ اسلام کے اندر، شریعت مبارکہ کے اندر ایک فرض کے حکم میں ہے، اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم رکن ہے، ایک اہم بنیاد ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اس بات کی گواہی دینا۔ دوسرا فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ایک نماز ہے اور ایک زکوٰۃ ہے، اور والحج وصوم رمضان، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز کا ذکر فرمایا، اس کے فوراً بعد اسی جگہ پر اللہ نے زکوٰۃ کا حکم بھی فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور جہاں سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے بالکل وہیں سے دیکھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ تو شروع ہی میں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرما کر کے بتا دیا
اگر کوئی والذین یؤمنون ایمان لے کر کے آئے، اب اس کے اوپر یہ دو کام بالکل ہر حالت میں فرض ہو چکے ہیں، نہ کرنے کی صورت میں گنہگار ہوگا۔ پہلا کام نماز پڑھنا، اور دوسرا کام نماز کے فوراً بعد اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ یہ دو کام اللہ نے ہم سب کے اوپر فرض فرما دیے۔ نماز تو ہر ایک کے اوپر ہے، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں کچھ مختصر سا نصاب ہے، تو اس کی اہمیت میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی آیات پڑھی، اس کا ترجمہ سمجھ لے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها، کہ جو کوئی انسان، جو شخص اپنے مال کو، سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور خرچ نہیں کرتے اس میں سے اللہ کے راستے میں۔ یہاں زکوٰۃ کا حکم ہے، خرچ نہیں کرتے اس میں سے اللہ کے راستے میں، فبشرہم، انہیں خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری ایسی نہیں کہ آپ کو بہت بڑا ایوارڈ مل جائے گا، بلکہ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سنا دو ہمارے دردناک عذاب کی۔ اور کیسا عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے اس مال کو روز قیامت جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور خالص تپایا نہیں جائے گا بلکہ فرمایا فتقوی بہا جباہہم، ان کو اس مال کو تپا کر ان کی اس مال سے پیشانیوں کو داغا جائے گا، وظہورہم وجنوبہم، ان کی پیشانیوں کے بعد میں ان کے مونڈھوں کو، ان کے کاندھوں کو، اور پھر ان کی وظہورہم، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہاں اللہ نے خاص طور پر تین باتوں کا ذکر فرمایا، پیشانی، اور پھر کاندھے، اور پھر اس کے بعد میں پیٹھ۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں ان تینوں باتوں کا خاص طور پر حکم اس لیے ہوا کہ جب کوئی انسان کو کسی بات کی ناگواری گزرتی ہے تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، تو فرمایا اللہ رب العزت نے ہم اس بل کو ہی ختم کرنے کے لیے پیشانی کو داغیں گے۔ اور پھر جب کوئی ناگواری آتی ہے، پیشانی گزرنے کے بل پڑنے کے بعد وہ انسان اپنے مونڈھوں کو تکبرانہ انداز میں چڑھاتا ہے، ابھارتا ہے، گویا کہ آسمان سے لگنے کو تیار، مجھ سے بڑا اب کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اس کو بھی چھوٹا کر دیا جائے گا، اس کے کاندھوں کو داغا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ کوئی انسان اگر کسی کے سامنے آئے، اپنی ضرورت کا اظہار کرے، وہ تکبرانہ انداز میں اس سے منہ پھیر کر پشت اس کی طرف سے کر کے چلا جاتا ہے، فرمایا اس پشت کو بھی داغا جائے گا۔ تو تینوں باتوں کا ذکر آیا۔ اس سے آگے جانور، اب اس کا نصاب کیا ہے؟ اب نصاب کے بارے میں بات کریں تو جانور ہیں، جانوروں پر آج کے زمانے میں تو زکوٰۃ نکلنا ہی نہیں جانتے، اور اگر کوئی اللہ ماشاءاللہ کہیں نکال بھی دے تو اس کے بارے میں بڑی اونچ نیچ کر دی جاتی ہے۔ تو جانوروں کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جانور پالتا ہے اور پھر اس پر زکوٰۃ اس جانور میں فرض ہو جائے اور وہ زکوٰۃ نہ نکالے تو روز محشر قیامت کا دن ہوگا، اس کے اس جانور کو اللہ اپنے حکم سے موٹا کرے گا، فربا کرے گا، اور پھر حکم ہوگا جانور کو کہ اپنے سینگ اور اپنے خروں سے اسے کچل کر کے چلا جا، یہاں تک کہ انسان کا ایک قسم کا قیمہ بن چکا ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ اب دوبارہ وہ دوبارہ آئے گا تو تب تک انسان صحیح ہو چکا ہوگا، پھر وہ اسے کچلتا رہے گا، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور جہنم بھی کیسی جہنم؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہاں ایک آیت آتی يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جہنم کا نام ہے حطمہ، ایسی جہنم جو زکوٰۃ نہ دینے والوں ہی کے لیے بنائی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان اس میں نہیں جائے گا سوائے اس انسان
इस्लाम के जो मुशरिक हो, यानी कि फिरौन, हामान, शद्दाद, कारून, नमरूद, खास तौर से इनके लिए जहन्नम को बनाया गया है, हुतमा जहन्नम को। और फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपकी उम्मत के वो गुनेगार जो माल की ज़कात नहीं देते, वो भी फिरौन, शद्दाद, हामान, कारून के साथ अल-इयाज़ु बिल्लाह इसी हुतमा जहन्नम के अंदर जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बड़ी सख्त जहन्नम है मेरे अजीजों। ज़कात का निसाब बड़ा बारीक निसाब है, बड़ा उम्दा निसाब है, इसे समझने की जरूरत है। बात को बहुत मुख्तसर करता हूं कि निसाब क्या है। सोने का जो निसाब है वो 7.5 तोला सोना है, लेकिन आम तौर से हमारे मोहल्लात में, हमारे इलाकों में एक गलती की जाती है कि भाई हमारे पास तो सारी चीजों को भी मिलाया जाए, 7.5 तोला सोना बनेगा ही नहीं तो हमारी ज़कात ही नहीं है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए ये 7.5 तोले का जो निसाब है सोने का, ये किस सूरत में है? ये उस सूरत में जबकि सोने के अलावा कोई और दूसरी चीज बिल्कुल आपके पास मौजूद ना हो, ना माले तिजारत मौजूद है, ना आपके पास नकद रुपया 1-2 रुपए भी मौजूद नहीं है सोने के अलावा, और माले तिजारत भी नहीं है, नकद रकम भी नहीं है, कोई मकान प्लाट वगैरह भी नहीं है, कोई जरूरत से जायद घर में बर्तन कपड़े लत्ता भी नहीं है। मिसाल के तौर पर पुराने जमाने की जो शादियां हैं वो जानते हैं कि उन्हें पीतल के, तांबे के जो बर्तन मिलते थे जो आज के जमाने में इस्तेमाल नहीं होते, उन पर ज़कात है, हालांकि निकालना नहीं जानते, निकालते नहीं। तो फरमाया सोने का निसाब तब है जब उसके पास इन तमाम चीजों में से 1 रुपया भी कुछ ना हो, तो फिर 7.5 तोला सोने का एतबार होगा। अगर है 7.5 तोला तो ज़कात अदा करे, अगर नहीं है तो ज़कात अदा ना करे। लेकिन अगर सोना सिर्फ आधा तोला है, 7.5 तोला तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ आधा तोला सोना है और उसके साथ में सिर्फ 100 रुपए आपकी जेब में पड़े हैं, तो आप अब 7.5 तोले का हिसाब नहीं लगाएंगे, बल्कि अब उस सोने की कीमत का हिसाब लगाएंगे कि हम जिस दिन ज़कात निकाल रहे हैं उस दिन मार्केट में इस आधे तोला सोने की कीमत क्या है। अब जब ये कीमत हमें मालूम हो गई, अब उसी के अंदर ये 100 रुपए भी ऐड कर दिए जाएं, उसमें ये शामिल करके अब देखा जाए कितने बने। अब हमारे ये देखना है 7.5 तोला का हिसाब नहीं, बल्कि अब हिसाब लगेगा 52.5 तोला चांदी का। अब सोने का हिसाब नहीं है। अब जब चीजों का हिसाब हम नकद रकम में तब्दील कर रहे हैं, अब हिसाब लगेगा आपकी 52.5 तोला चांदी का। सोने का मामला या खत्म हो जाएगा। अब अगर किसी के पास 100 रुपए के अलावा कोई इस तरीके का मकान भी है जो उसने बेचने की नियत से लिया हो, कोई प्लाट है जो उसने बेचने की नियत से लिया हो, कोई कारोबार करता है, उसका माले तिजारत मौजूद है, मसलन परचून की दुकान है, कपड़े की दुकान है, किसी भी चीज की दुकान है, वो माले तिजारत का हिसाब लगाएगा कि इस दुकान के अंदर हमारे पास में कितना रकम का सामान मौजूद है, और फिर उस रकम को उसमें ऐड करेगा जो सोने और 100 रुपए को ऐड किया। उसके बाद में देखा जाएगा कि और कोई हमारे पास कोई ऐसी चीज तो नहीं, मसलन कोई मकान है जो किराए पर चल रहा है, किराए पर चलने वाले मकान पर ज़कात नहीं है, लेकिन उससे आने वाला जो किराया है उस पर ज़कात है। अब हमें देखना होगा कि हमारा साल में कितना माल किराए का आया, उस पर ज़कात है। ये सारे माल को इकट्ठा करने के बाद माले तिजारत भी, सोना भी, नकद रकम भी और कोई इस तरह से जरूरी सामान भी, किसी के पास 2 गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल में, एक आती है एक मुस्तकिल खड़ी है, उस पर भी ज़कात वाजिब है, इसलिए कि वो जरूरत से जायद है और जरूरत से जायद पर ज़कात फर्ज है। इसलिए अब सारी चीजों का हिसाब लगाया जाएगा और उसको देखा जाएगा कि 52.5 तोला चांदी की रकम बनती है या नहीं बनती। अगर बनती
बनती है तो ज़कात देनी पड़ेगी। और ज़कात देने का तरीका क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि मैं सारा माल तुमसे नहीं मांगता, सिर्फ 2.5%, 2.5%, 40 रुपए पे एक हिस्सा, 1 रुपया मांगता हो। मेरे रास्ते में सिर्फ 40वां हिस्सा खर्च करना है, तो हमें यहाँ ज़कात देनी पड़ेगी। और अगर ज़कात हमारी इतनी नहीं बनती कि सब चीजों को मिलाकर भी हमारे पास 52.5 तोला चांदी नहीं है, तो अब हम ज़कात देने के हकदार नहीं होंगे, अब हम ज़कात लेने के हकदार होंगे। अब ज़कात लेने के हकदार होंगे, देने के नहीं होंगे। लेकिन अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर बैठ गया तो अब हमें देनी पड़ेगी, ये समझ रहे थे ना। अब यहां मैंने अभी कहा कि 40वां हिस्सा अल्लाह का हुक्म है। अब 40वां हिस्सा अगर मेरा अल्लाह चाहता तो ये भी हुक्म दे सकता था कि सारा का सारा माल मेरे रास्ते में खर्च कर दो, लेकिन मेरा अल्लाह रहीम है, करीम है, वो जानता है कि बंदों की भी जरूरियात है। उसने कितनी मेहरबानी की कि उसने खुद हमें माल दिया, और वो माल देने के बाद फिर हमें हुक्म दे रहा है कि सारा नहीं बल्कि 40वां हिस्सा अदा करो। अब अगर कोई कहे कि अल्लाह ने हमें क्यों दिया, हमने तो अपने बाजुओं से कमाया, तो अकल के अंधे जरा सोच, तुझे इन बाजुओं में ताकत किसने दी? कोई कहे मैंने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, दिमाग को किसने दिया? कोई कहे मैंने बड़ी दौड़ भाग करके माल को कमाया, तो इस दौड़ भाग करने के लिए तेरे पांवों में ताकत किसने रखी? अगर वो अल्लाह तुझसे ताकत छीन ले, फिर कौन है जो तुझे कमा करके खिला दे? फिर कौन है जो तुझे आकर के खिला दे? फिर कौन है जो तेरे घर में आकर के तेरे अखराजात को उठा ले? ये जमाना वो जमाना नहीं है जिस जमाने को हम समझते आ रहे हैं कि बड़ा मुबारक, बड़ा नेक जमाना है। आजकल कोई किसी के काम आने वाला नहीं। इसलिए ये अकल से गलत फहमियों को निकाल दे कि अल्लाह ने हमें नहीं दिया, हमने अपनी मेहनत से कमाया है, नहीं बल्कि अल्लाह ही ने हमें दिया है और अल्लाह ही देने वाला है। और फिर उसके बाद मेरा अल्लाह कह रहा है कि वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे तो फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक आज़ाब भी आपको दिया जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, ज़कात की अहमियत को समझे, ज़कात के मसाइल को समझे और अपना हिसाब लगा करके पूरी ज़कात इस मसाले को सामने रख करके अपनी ज़कात को निकाले। अब बाज़ हज़रात इसमें भी ये गलती करते हैं कि वो हिसाब से नहीं निकालते, वो बस ऐसे ही निकाल देते हैं कि अंदाज़तन, ये हमारा अंदाजा है कि इतनी रकम आई है, बस इस पर इतनी ज़कात दे दो। अब उसमें अगर 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात है, 1 पैसा भी अगर कम हो गया तो मेरे दोस्तों आप भी उतने ही बड़े गुनाहगार होंगे जितना कि ज़कात बिल्कुल सिरे से ना देने वाला गुनहगार होता है। इसलिए इस बात का ज़हन में रखें, पूरा ये हिसाब लगा करके ज़कात को निकालें, अंदाज़तन ज़कात को ना निकालें। अब ज़कात देनी किसको चाहिए और ना देनी किसको चाहिए, ये एक अजीब मसला है और हमारे मुआशरे में इसमें बहुत बड़ी गलती की जाती है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी से भी बड़ी गलती होती है। ये समझ ले कि उसूल व फुरू को ज़कात नहीं दी जाती। उसूल के माना वालिदैन, माँ बाप को ज़कात नहीं दी जाती, माँ बाप के माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी को ज़कात नहीं दी जाती। ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाओ, इस पर ज़कात नहीं, वालिद, दादा दादी, परदादा परदादी, इन पर ज़कात आप नहीं दे सकते। और फुरू किसे कहते हैं? औलाद को कहते हैं, यानी बाप अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकता, चाहे वो बेटा हो या बेटी। और औलाद की औलाद यानी अपने पोती पोता नवासी नवासे को ज़कात नहीं दी जा सकती। और फिर नवासी नवासे के बच्चों को ज़कात नहीं दी जा सकती। यानी उसूल यानी वालिदैन को भी ज़कात देने का हुक्म नहीं है ऊपर तक, और औलाद को भी ज़कात देने का हुक्म नहीं है नीचे तक, ये समझ लेना। हाँ, अलबत्ता भाई अपनी बहन को ज़कात दे सकता है, बहन अपने भाई को ज़कात दे सकती है, अगर इस हालत में कि वो मुस्तहिक ज़कात है, जब दी जा सकती है, खामखा नहीं दी जा सकती।
अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी का ये निसाब नहीं जो अभी बताया, तो ज़कात लेने की हकदार है, दी जा सकती है। और अगर नहीं इतना माल मौजूद है तो अब भाई अपनी बहन को ज़कात नहीं दे सकता और बहन अपने भाई को ज़कात नहीं दे सकती। ये बात समझ लेने की जरूरत है। हम इसमें गलतियां करते चले जाते हैं कि भाई हमारी बहन बीमार है, परेशान है, इस वक्त में उनके पास पैसा नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे नकद नहीं है लेकिन तिजारत का माल है, नकद नहीं है लेकिन सोना और चांदी है, तब क्या करे जी? कर्जा लेकर तो हम नहीं दे सकते। तो हुक्म ये है कि सोने को बेचकर ज़कात दो, चांदी को बेच करके ज़कात अदा करो अगर आप साहिब निसाब है। करनी पड़ेगी, ये बहानेबाजी नहीं चलती कि मैं तो खुद कर्जदार हूं, मैं क्या करूं। भाई जितना तेरे पास सोना उसे बेच, पहले कर्जा निपटा, फिर तेरे पास जो बच रहा है उसमें देख अब क्या सूरत हाल निकलती है। अब अगर तू साहिब निसाब है कर्जे के बाद, अब तुझे वो सोना बेचने के बाद भी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। इसमें हम बड़े मसले पूछते हैं जी, हम तो खुद इतने कर्जदार हैं, हम तो खुद ज़कात लेने के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, हम क्या करें? तो समझ लेना कि अपने माल को बेच करके ज़कात देने का हुक्म है। अब इसमें मदारिस वालों के बारे में मैं खुल करके बात करूं कि यहां तहकीक नहीं की जाती। हालांकि मदरसे में अक्सर व बेशतर ये मामला हो रहा है आज के इस जमाने में कि चंदे करने वालों को परसेंटेज पर रखा जाता है। मसलन आप हमारे पास में ज़कात का चंदे का माल लाएं और हम आपको इस चंदे में से इतने परसेंट हम आपको अदा करेंगे, ये बिल्कुल नाजायज है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है आप ज़कात दे रहे हैं तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। लेने वाला भी गुनहगार, देने वाला भी गुनहगार, मदरसे का जिम्मेदार और मोहतमिम भी गुनहगार होगा। हम तहकीक नहीं करते, परसेंटेज वालों को ज़कात देने का हुक्म नहीं है। ये हम हमेशा याद रखना, ज़कात का जो मामला होता है वो होता है तमलीक का मामला। तमलीक कहते हैं मुकम्मल किसी इंसान को बिल्कुल पूरी तरीके से उसका मालिक बना देना। अब मदरसे वाले क्या करते हैं? ज़कात आपसे वसूल की, उसमें किसी को मालिक नहीं बनाते। बाज़ मरतबा मदरसे की इमारत बना दी जाती है, बाज़ मरतबा उससे बच्चों का खाना बना दिया जाता है, बाज़ मरतबा उससे उस्तादों की तनख्वाह अदा कर दी जाती है। ये बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है। ये याद रखना, ज़कात का पैसा मालदारों के लिए नहीं है। ज़कात के पैसे से आप किसी भी तरह की कोई इमारत नहीं बना सकते, चाहे वो मदरसे की इमारत हो, चाहे वो मस्जिद की इमारत हो। आप ज़कात की रकम से इमारत कोई बना ही नहीं सकते, लेकिन आज हो रहा है। ये बिल्कुल सिर्फ आम तौर से खुला चल रहा है। तो याद रखना, मदरसे वालों को चाहिए अगर वो ज़कात वसूल कर रहे हैं वो पहले गरीब बच्चों को उसका मालिक बना दे, और फिर अगर वो बच्चा मदरसे में रसीद कटवाना चाहे अपने तरीके से लेकिन ज़कात की नहीं, सदके की, इमदाद की, वो एक अलग मसला हो जाएगा। तब आप उस ज़कात को इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन बराह रास्त परसेंटेज वालों को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती, ये समझ लेना चाहिए। लेकिन आज देख रहा हूं कि जितने भी सुफरा मदरसे वाले आ रहे हैं वो अक्सर परसेंटेज वाले होते हैं, वो तनख्वाह वाले नहीं होते। वरना होना ये चाहिए, मसला ये है कि जो ज़कात वसूल करने वाले हैं उन्हें तनख्वाह पर रखो महाना, कि हम आपको महीने में आप हमें कितना भी दो, हम आपको इतनी रकम महीने में अदा करेंगे, परसेंटेज वाली अदा नहीं करेंगे। हम अभी सूरत पर अगर ज़कात दे रहे हैं तो ज़कात सही होगी, परसेंटेज वाली दे रहे हैं तो ज़कात अदा नहीं होगी। इस मसले को बड़ी बारीकी से समझ लेना चाहिए, इसलिए तहकीक कर लेनी चाहिए। जितने भी सफीर आते हैं सबको ऐसे ही नहीं दे देना चाहिए, ये तहकीक जरूरी है। फिर इसके अलावा सैयद घराने में सैयद लोगों को ज़कात देने का हुक्म नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। अब ज़कात है क्या चीज, ज़कात देने से फवाइद क्या है, इसकी तरफ आते हैं थोड़ी सी देर के लिए। कि ज़कात असल में माल की हिफाजत का नाम है। जो ज़कात पूरी हिसाब लगा करके अदा कर दें, अल्लाह का वादा है कि हम उसके माल की हिफाजत करेंगे।
एक दो वाक़ये बताकर बात को खत्म करूं। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब आप बीती लिखी है, उसके अंदर चंद वाक़यात इस ताल्लुक से लिखे हैं कि सहारनपुर के अंदर अंग्रेज रहा करते थे। अब अंग्रेजों के मकान वहां मौजूद थे, उन्होंने वहां दरबान अपने खुद्दाम वगैरह को छोड़ा हुआ था मकान की देखभाल के लिए, लेकिन रहना सहना बाहर किसी और जगह किसी और शहर में था। अब वो कभी कभी वहां आते, महीना दो महीना रुकते और रुक करके वहां से चले जाते। एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत शेख लिखते हैं कि उस बस्ती के अंदर आग लग गई। अब सबके मकान जलते हुए चले जा रहे हैं। अब खुद्दाम ने अपने मालिक अंग्रेज को फोन किया या बराह रास्त राबता किया, वल्लाहु आलम, वल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन लिखते हैं हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कि उस मालिक का अल्फाज ये थे कि मेरे मकान में आग नहीं लगेगी, अंग्रेज के अल्फाज। अब उसने कहा कि आग क्यों नहीं लगेगी? कहा कि मैंने मुसलमान उलमा से सुना है जो अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च कर दे ज़कात की सूरत में, अल्लाह उसके माल की हिफाजत करता है। मैंने ये बात सुनकर अपने माल की ज़कात अदा कर दी और वाकई ऐसा हुआ कि जब आग उस मकान के करीब पहुंची तो खुद ब खुद बुझ गई थी, खत्म हो गई थी। ये हज़रत शेख ने अपनी किताब आप बीती के अंदर लिखा है। तो गैर मुस्लिम तो वो तो अलग बात है, अल्लाह उनके माल की हिफाजत कर सकता है, तो फिर मुसलमान अगर ज़कात अदा करे तो उसकी क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह तो इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, यहाँ हुक्म चलता है तो अल्लाह ही का हुक्म चलता है, किसी और का हुक्म नहीं चलता। लेकिन हम करके तो देखें। इसी किताब के अंदर हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह दूसरा वाक़या लिखते हैं और इस वाक़ये को इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हिलियतुल औलिया के अंदर भी लिखा है कि सहारनपुर के अंदर एक नाम था फजल हक, एक इंसान फजल हक, और उसका तकिया कलाम था अल्लाह के फजल से। वो जो भी कोई बात कहता वो कहता अल्लाह के फजल से। एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत शेख लिखते हैं कि मेरे पास आया, आकर के कहने लगा हजरत अल्लाह के फजल से बड़ा अजाब नाजिल हो गया। अब हजरत शेख भी हंसने लगे, फरमाते मैं भी मुस्कुराया कि अल्लाह के फजल से अजाब आ गया। बहरहाल उसने अपना वाकया बताया कि हजरत अल्लाह के फजल से अजाब ये आया कि मैं अपने घर में लेटा हुआ था, अब कुछ चोर वगैरह घुस आए, संदूक में 6 पैसे का ताला लगा हुआ था, बिल्कुल छोटा ताला 6 पैसे का, और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं उठा और उठ करके कहा भाई अपना वक्त को जाये ना करो, चले जाओ, ये नहीं टूटेगा। मैंने अपने माल की ज़कात दे दी, वो मेरी बात ना माने, मैं जाकर के सो गया, वो तोड़ते रहे, यहां तक के तहज्जुद का वक्त हो गया। मैं जब उठा तो ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ताला टूटने को तैयार नहीं था। आखिर वो मायूस होकर के चले गए। मैंने उनसे कहा था कि मैंने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, आपसे ताला नहीं टूटेगा। तो बाज़ाहिर बात को बताने का मकसद ये है कि जो इंसान अपने माल की ज़कात अदा कर दे, अल्लाह उसके माल को कम नहीं करता, उसके माल को ज़ाय नहीं करता, अल्लाह उसके माल को बढ़ाता भी है और बढ़ाने के साथ साथ हिफाजत भी करता है। लेकिन हमारे मुआशरे में होने ये लगा है कि अगर हम किसी को 1 बोरी आटे की या 2-4 किलो चीनी या ईद के थोड़े बहुत कपड़े दे दे तो सबसे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो रील और फोटोज हमारे वायरल होते हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपको एक वाकया बता करके बात को खत्म करो। हजरत हसन और हुसैन की औलाद में से है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतने बड़े अल्लाह वाले अहले बैत में से हैं। इनके बारे में लिखा है कि इनके खर्चे से, इनके पैसे से हजारों मुसलमानों के घर चला करते थे, लेकिन किसी को खबर भी ना थी।
क्या खबर कि रात के वक्त में अपने चेहरे पर नकाब लगाते और अपने पीठ पर, अपनी कमर पर बोरियां उठाते और मुस्तहिक लोगों के घर बोरियों की बोरियां, खाने के राशन कभी कुछ पहुंचाते। यहां तक कि इनके खादिम कहता कि हजरत मुझे मुशक्कत मेरे ऊपर डाल दें, आप बोरी ना उठाएं, आप तो अहले बैत में से हैं, मैं इसे उठा लूं। हजरत फरमाते कि खबरदार, ये बोझ मेरा है, मुझे ही करने दो। यहां तक कि हजरत का इंतकाल हुआ, गुस्ल का वक्त आया तो लोगों ने जब गुस्ल दिया तो देखा कमर पर बोरियों के निशान मौजूद थे। तहकीक की गई खादिम से तो खादिम ने बताया, हजरत ने मुझे कहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, जब तक मैं जिंदा हूं किसी को ये बात ना बताना। चूंकि अब हजरत इस दुनिया में नहीं रहे, मैं बताता हूं ये मामला क्या था। हजरत रोजाना बोरियों की बोरियां अपनी कमर पर उठाते, रात के वक्त में नकाब अपने चेहरे पर लगाते और मुस्तहिक लोगों के घर तक उस राशन को पहुंचाते थे। उस वक्त पता चला कि हमारा जो घर चल रहा था वो अहले बैत के घर से चल रहा था। आज हमारी हालत ये है कि 1 किलो राशन भी देंगे तो पहले हम बताएंगे कि मेरे घर से आया है। तो मेरे भाइयों, अगर कोई तुम्हारे पास हाथ फैलाने के लिए आता है, बड़ी उम्मीद के साथ आता है, बड़े दिल को तसल्ली दे करके आता है, उसका दिल न तोड़िए, उसकी आहो पुकार को सुन लीजिए। खुदा की कसम, अल्लाह आपकी दौलत में इजाफा करता चला जाएगा। और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसका उल्टा भी मेरा अल्लाह करना जानता है। इसलिए कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह ही का हुक्म यहाँ चलता है। तो मेरे भाइयों, आखिर में एक ऐलान करता हूं कि ज़कात के ताल्लुक ही से कि दारुल उलूम देवबंद की रशीद आ चुकी है रमजान से पहले। और दारुल उलूम देवबंद सिर्फ हिंदुस्तान ही का नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। और वहां ये मामला नहीं जो मैंने अभी बताया तमलीग वाला, वहां ये मामला नहीं परसेंटेज वाला, वहां ज़कात देनी बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। और वहां का जो खर्च इस साल का, जो मौजूदा साल अभी खत्म हो रहा है, इसका ये है कि इस साल का बजट तकरीबन 51 करोड़ 30 लाख 35 हजार रुपए और इससे अलावा 5000 क्विंटल से जायद अनाज का खर्चा हुआ है। और तकरीबन 5000 से जायद बच्चे वहां जेर तालीम हैं। और फिर वहां इस तरीके से हम ज़कात को पहुंचाए, वहां बिल्कुल बेआख बंद करके भरोसा करके पहुंचाए, इंशाअल्लाह आपकी ज़कात कारामद भी होगी, आपको फायदा भी होगा, मदरसे भी बाकी रहेंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की सआदत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।